Okay, good afternoon again. Let's start with the things today. We'll start up with the new chapter. Um, we'll go with Excel today, right? So it's another important chapter which is based on spreadsheets. So basically, you might have done it before in your previous classes also. This spreadsheet is a software where we can create some kind of tables, and the tables they are all you see the borders and all that they are already cells and all they are already made. We just have to enter the values, and once the values are entered, the most important part of this chapter is that in this software is that we can do a lot of calculations, right? So that calculations can be performed in a very easy and better way. It's basically used to um, manage some kind of tabular form of data in a better and efficient way. ठीक है, तो हम आज करेंगे इसके बारे में how do we work with the tables and how do I'll just move on to the book first of all so that we can see okay, what all topics we are going to cover up here. Let me take a quick attendance so that okay, let's see this. Now see, most of the things that you people have already covered up in your older classes. So these are the topics which we are going to cover up in this particular chapter. First of all, we should know what are auto sum features of the cells. Auto sum is the feature with the help of which we can find the sum of values. Or secondly, how to apply certain conditional formatting features, and this is also an important part where we can highlight certain things based on some conditions. जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरे टेबल के अंदर या मैंने कुछ टेबल्स बनाया है, उस टेबल में I want to highlight all those values which are larger than 95 or 90, or I want to set a range कि भाई ये 90 से लेके 100 तक के जो नंबर्स हैं या उन 100 के बीच में जो नंबर्स है वो रेड कलर के हो जाएं, और जो 70 से 80 हैं वो ग्रीन कलर के हो जाएं. ऐसी कंडीशंस हम लोग दे सकते हैं, right? Then another important part that we can freeze and unfreeze the rows. Freezing unfreezing is also very important because when you are using certain tables, so therein whenever you're using certain records, and then therein find भी आपका जो टेबल है काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन से बड़ा है, स्क्रीन से ज़्यादा है, एंड आपको फर्स्ट कॉलम की वैल्यू देखनी है और लास्ट की देखनी है, तो हमें बार बार स्क्रॉल बार से मूव करना पड़ता है. तो टू अवॉइड दैट वी कैन फ्रीज सर्टन कॉलम्स. आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दो, ताकि अगर आप माउस की से या एरो की से मूव करो तब भी आपका जो डेटा है फर्स्ट कॉलम फिक्स हो जाए, वो हिले ना. ठीक है, अदरवाइज आगे पीछे जाते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे होता है, राइट? देन वी कैन ऑल्सो सेट पेज ब्रेक्स एंड पेज लेआउट्स. पेज ब्रेक्स मतलब इफ यू आर टाइपिंग समथिंग समवेयर एंड देन यू वांट टू जंप ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इसके बाद जो कुछ भी टाइप किया जाए वो अगले पेज पे चला जाए, तो वो वाला पेज ब्लैंक छोड़ना है, तो दैट पेज ब्रेक कैन बी एडेड. Then how to manage different workbooks, and then how cells and cell ranges can be given, right? And how to utilize the charts, how to sort the data. Sorting filtering is again very important component, जिसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये बहुत हेल्दी टूल है, राइट? Then how to calculate things, and then use multiple workbooks and link cells. And then lastly, we should know how to share our things. How do we share our worksheets online? So let's start with the auto sum feature first of all. Now this auto sum feature is here. It is there in the home tab in the editing group. Now it's quite simple to use it. Like if I want the sum of these values here, so I can simply go. First of all, I need to select all these values, right?
एंड देन हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने ये ऑटो सम फीचर से जो सम निकलेगा वो सम शो कहाँ करना है. लेट्स से इफ आई वांट टू अपेयर इट इन J9 सेल नंबर, राइट. सो यू हैव टू क्लिक ऑन J9 फर्स्ट. पहले वहाँ J9 पे जाइए, उसके बाद ऑटो सम फीचर में जाओ, सम पे क्लिक करो और उसके बाद चूज द रेंज. रेंज मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर्स का सम चाहिए, राइट. सो व्हेन यू चूज इट यू कैन फाइंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा इक्वल टू सम ब्रैकेट और जो रेंज आपने सेलेक्ट की ऑटोमेटिकली आ जाएगी. फॉर्मूला बार पे आप देख सकते हो, राइट. सो दिस इज ऑल. एंड व्हेन यू प्रेस एंटर, उसके बाद कहीं और क्लिक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका रेफरेंस चेंज हो जाएगा. क्लिक नहीं करना है, प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, बिकॉज क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो आपने J5 से J8 तक का सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन कहीं और का आ जाएगा, राइट. तो उसमें इट विल चेंज द सिलेक्शन, सो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन दैट केस. So always press enter after that, right. So this is how auto sum button is used. Now it's not only to find sum, but we can also find average. We can count the numbers, we can find maximum, minimum, and moreover there are many more functions available, right. तो functions आपको ये formula tab में भी मिल जाएगा. ये देखो formula tab में भी ये same option है auto sum का. तो from there you can also apply the same kind of auto sum feature, right. And apart from AutoSum, you can also find count numbers, average, min, max. There are a lot of features. There are a lot of functions. So, but the common one are these only, right? So, let me just show you this to also on the screen. Let me open up one of the sheets. Okay, let's open up a blank sheet. Let me go to the sheet first of all. Done. So now you can see the sheet. Now here, if I have some numbers written somewhere, anywhere, right? Now I want the sum of all these values here. So the way is, there are two ways. One way is, let me make it bigger so that you people can see it easily. I want sum here. So पहला काम हमने इस सेल को select करना है, ठीक है. So go to auto sum. You see the auto sum. Click on sum. The moment you click on sum, it automatically detects all the numbers present near to that particular cell. उसने automatically range ले ली D3 से D7 D8. So अगर आपको change करना है तो आप इसको ऐसे select करो, ठीक है. मुझे first 3 का चाहिए तो range first 3 की आएगी. Just click and drag, click, drag and leave the mouse, ठीक है. और manually you can type also, right. So वंस द सिलेक्शन इज डन, इसके बाद कहीं पे भी क्लिक नहीं करना. अगर आप देखो, मैं करके दिखाता हूँ. मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ रेफरेंस I4 हो गया है, चेंज हो जाता है. क्लिक नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करो और एंटर प्रेस कर दो. यू विल गेट द टोटल ऑटोमेटिकली, राइट. दिस इज वन वे. सेकेंड वे इज, आई विल पुट सम मोर नंबर्स. सो आपको ये सेलेक्ट करना है और एक खाली सेल को सिलेक्ट करना है जो इसके बाद है, जिसमें आपको सम चाहिए, राइट. नाउ क्लिक ऑन दिस बटन. दैट्स इट. Automatically the sum will be calculated. Fine. This is second way, but this only works if you want to find apply auto sum to the immediate next cell, right. ये जो तरीका था ये आप कहीं पे भी, मगर यहाँ पे auto sum चाहिए. So I'll go to auto sum, right. It will try to detect these numbers, but मुझे इनका चाहिए तो I'll just select this and press enter. तो यहाँ पे auto sum लग जाएगा, right. ऑटो सम का फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हो तो सम विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली. एज यू कैन सी these numbers are changing, right. But this method that I told you just now, this only works when we have
we want to apply this formula just next to the numbers which are entered, right? It can be any way, both ways, horizontally but vertically also. जैसे मुझे ये है 5 6 7, ये 3 नंबर्स हैं, मैं थोड़ा इनको बड़ा कर लेता हूँ और मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ। आई क्लिक हियर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम आ गया, राइट? So that's auto sum. Now apart from auto sum we can also change this into average. Now उसके लिए भी आपको वही करना है, या तो सेल्स को सेलेक्ट करो और ब्लैंक सेल को भी सिलेक्ट करो, यहाँ से एवरेज पे क्लिक कर दो, एवरेज आ जाएगा. यू कैन सी द एवरेज formula is automatically added into this, right? Or second way is you just click on the cell, click on this average, then select the range, you'll get the average. Fine. So likewise you can also put count numbers. Count number से count method, count function लग जाएगा, it will count the values. And likewise max will find the maximum value, and min will find the minimum value out of the range that you have selected, right? Or secondly, when you can also apply these from the formulas tab on the top. Just wait a second, huh? There's a call from the office continuously there. Okay, let's continue. So this is all about auto sum and other functions. I was showing you that we can also use this formula tab on the top, and from here you can see these auto sum options are also there. So apart from these are the 5 most commonly used functions, and then you click on more functions, तो आपको यहाँ और भी बहुत सारे functions मिलेंगे. ठीक है, ये रिसेंटली यूज वाले हो गए, ये फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम, रेफरेंसिंग, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मोर functions. You'll find a long list of functions which can be used for doing different kind of calculations, right? So although we'll just stick to these basic functions only. Fine. चलो अभी हम बुक में देखते हैं नेक्स्ट क्या है. These are some of the application. You must practice these applications at home. जैसे यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस. सो दिस सेल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस सेल नंबर, राइट? प्रोडक्ट के लिए आपको स्टार सिंबल यूज़ करना है. मैं एक बार दिखा देता हूँ, ऑल्दो यू माइट हैव डन इन जूनियर क्लासेस. जैसे इफ़ यू वांट, मुझे यहाँ पे इनका प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ शो करना है, तो आई टाइप इक्वल टू पहला सेल स्टार, सेकंड सेल and enter. So this will multiply, right? And in case if you want to divide, so in place of star you put slash, right? So it's divide के लिए slash, multiply के लिए star, right? और add के लिए plus कर लो, वो तो हमने किया था, और माइनस से subtract हो जाएगा. Fine. So these things you can practice. Coming to next topic, again very important, conditional formatting. As I told you earlier also, that in case I want certain values to be highlighted in a separate way, like जैसे मेरे पास एक मार्क्स का रिकॉर्ड है
और मैं उस मार्क्स रिकॉर्ड में चाहता हूँ कि जिन बच्चों के 90 से ऊपर हैं वो ग्रीन कलर के हो जाएं, या जो 70 से 90 के बीच वाले हैं उनका थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट हो जाए, उनका बैकग्राउंड कलर उन सेल्स का चेंज हो जाए. So such kind of rules we can apply to the data present within one cell. And then जब भी उस पूरी शीट में कहीं पे भी कोई मॉडिफिकेशन होती है, if that value wherever the value is written in that particular range, तो उसकी फॉर्मेटिंग जो है उस हिसाब से हो जाएगी, right? So how do we do that? Now we can choose these kind of formats. या तो नंबर फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, या उसका फॉन्ट स्टाइल कलर चेंज कर सकते हैं, या फिल कलर पैटर्न जो पीछे बैकग्राउंड कलर होगा सेल का वो चेंज कर सकते हैं, या बॉर्डर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. ये 4 तरह के फॉर्मेट्स हम पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हैं, राइट. नाउ हाउ डू वी अप्लाई? गो टू होम टैब, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द स्टाइल्स ग्रुप. होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है स्टाइल्स ग्रुप में. आई विल शो यू देयर इन द एक्सेल शीट आल्सो, राइट. सो उसमें हाईलाइट सेल रूल्स लिखा होगा. सो जस्ट सेलेक्ट दोज हाईलाइट सेल रूल्स, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे सब मेन्यूज होंगे. लाइक उसमें ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है. तो जो पर्टिकुलर रूल आपको लगाना है, जैसे मान लो 90 से ऊपर वाला जाना है तो आई चूज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है. या 70 से 80 के जाना तो आई चूज बिफोर एंड बिटवीन दिस एंड दिस, राइट. तो बिटवीन वाला रूल चूज करूंगा. सो राइट, so like we choose that thing, so whenever you choose it, you'll get this kind of dialog box. यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है, किससे बड़ा वैल्यू चाहिए. जैसे 90 से ज़्यादा चाहिए, विल पुट 90 है, राइट. और यहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें चूज़ कर सकते हो. यहाँ पे देखो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट. सो ये क्या करेगा कि बैकग्राउंड में रेड हो जाएगा, वो भी लाइट रेड, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट आएगा वो डार्क रेड हो जाएगा. लाइकवाइज ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं. अगर आपको कुछ अपना फॉर्मेट लेना है तो कस्टम फॉर्मेट पे जाके आप अपना फॉर्मेट बना सकते हो. Just click OK at the end, so that conditional format will be applied. But remember, it will be applied only to that area जो आपने सेलेक्ट किया है, सारी जगह नहीं. जो आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया में ही. जैसे यहाँ पे इन्होंने G4 से लेके G8 सेल्स सेलेक्ट किए हैं G9 तक, तो ये सिर्फ इतने सेल्स को इफेक्ट करेगा, बाकियों को नहीं करेगा. तो फॉर अप्लाइंग दीज कंडीशनल फॉर्मेट्स यू हैव टू सेलेक्ट द थिंग्स फर्स्ट. ये हैं वो सारे रूल्स. हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स दैट यू कैन सेलेक्ट, ठीक है. ये वो फॉर्मेट सेल ऑप्शन है जहाँ से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो. जैसे ये है, ये वो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, बैकग्राउंड लाइट रेड एंड टेक्स्ट रेड. तो जहाँ यहाँ इन्होंने कंडीशन डाली है 10,000 से ज़्यादा वाली. सो 10,000 से ज़्यादा वाली जो जो वैल्यूज हैं उनमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, राइट. So you can choose this, right? You can simply choose different kind of rules from here. There's a long list of rules, ठीक है. तो ये ये हो गया हाईलाइट करने वाले रूल्स. फिर इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स हैं. टॉप बॉटम्स आर द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, राइट. सो इसमें टॉप 10 अगर आपको हाईलाइट करने हैं, टॉप 10% हाईलाइट करने हैं, बिलो एवरेज हाईलाइट करना है, बॉटम 10% हाईलाइट करना है, सो दैट वी कैन सेलेक्ट. दीज आर ऑल्सो अगेन वन टाइप ऑफ रूल्स. जैसे मेरे पास मान लो 100 बच्चों का रिकॉर्ड है, मुझे टॉप 10 बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, राइट. सो आई विल सेलेक्ट दैट फुल कॉलम जहाँ पे मार्क्स हैं, और उनमें से मैं ये टॉप 10 वाले आइटम्स या टॉप 10% को सेलेक्ट करूँगा, right. So उसके बाद automatically that it will show you the top 10 records, right. बाकी इसमें some more condition formattings are also there, like if you want to show the bar kind of thing, data bars at the background, जैसे ये आपको दिखेंगे, ये नीचे data bars हैं, ऐसे backgrounds में data bars भी लगा सकते हैं, ठीक है. कलर स्केल्स वी कैन ऑल्सो चूज. ये कलर स्केल्स ऑप्शन है, अलग अलग कलर स्केल्स होंगे, ठीक है. ये कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग कर देते हैं. Then if you want some icons to be shown, direction icons or something like that, as you can see, जो आपने रेंज दिया था 10,000, तो 10,000 से कम वालों में रेड एरो नीचे की तरफ, जो ग्रीन वाले हैं
जो 10,000 से ज़्यादा है उसकी रेल एरो ऊपर की तरफ, और जो लगभग उसके पास है वो येलो एरोज होंगे ऐसे, राइट. So likewise we can put certain conditions. Now let's see this all on any one sheets. Let's put some numbers. I'll make some network trouble is there, disconnecting again and again, so no problem. Chalo. Right, so I am putting some names and some marks over here, right. Let's say this is 90, 95, 85, 99, 100, right. So these are only 5 numbers. Now let's say there's a long list of such numbers, right. Now out of all these, what I need to do is I want to highlight all the students who are getting more than 90. So first of all I'll select all the things. सारे मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया. होम टैब में ही स्टाइल्स ग्रुप में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है. सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइटिंग द सेल रूल्स. इफ यू वांट टू हाईलाइट द सेल्स, so in our case we'll go with the greater than option. I'll click on greater than. यहाँ पे आता है ग्रेटर देन 92.5 दे रहा है और मुझे चाहिए 90 से बड़े, राइट. और मुझे इसका कलर फॉर्मेट ये लाइट रेड है, देखिए येलो वाला फॉर्मेट है, एक ये ग्रीन फॉर्मेट है और लाइट रेड फिल है. टेक्स्ट कलर चेंज नहीं होता है इसमें, सिर्फ टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा. सो ये फॉर्मेट यू कैन चेंज और यू कैन गो विद कस्टम फॉर्मेट्स, राइट. एंड देन it will ask you to, ये आ गया कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन. फ्रॉम हेयर यू कैन simply make them bold, choose a fill color. I'll choose yellow as a fill color. और मैं फॉन्ट को अंडरलाइन नहीं करता हूँ, फॉन्ट कलर को मैं रेड कर देता हूँ या ब्लू कर देते हैं. तो जो फॉर्मेट आपने लगाया वो लग जाएगा. क्लिक ओके टू अप्लाई, दैट्स इट, राइट. सो इसका फ़ायदा क्या है, देखो अगर मैं इस वैल्यू को 95 की जगह 85 कर दूं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है. ये एक बड़ा एडवांटेज है, राइट. सो इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई values out of given values, so that we can put some conditions there and then you can highlight those things as per the conditions, right. Then if you want to highlight, let's say top 10 or top 5, for that we have second option top 10. now हमारे पास तो 5 ही हैं एंट्रीज, तो ये 5 ही हाईलाइट हो जाएंगे. so likewise top 10%, top between 10, and there's a lot of ranges you can give as per the requirements. This is data bars, right. so if you want to display the data bars, just select that data bar. data bars में आपको मैं सेल थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ. यू कैन सी ये 100% तक बार लास्ट तक जा रहा है और ये परसेंटेज के हिसाब से. अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये बार उस हिसाब से चेंज हो जाएगी. फाइन. some color schemes if you want to apply, so that can also be applied. icons if you want to apply, so that can also be done. हम ये डेटा बार्स को पहले हटा देते हैं, फिर थोड़ा आइकन्स विजिबल हो जाएंगे. लेट मी सेलेक्ट अगेन, आई विल गो विद आइकन्स. सो ये पहला वाला सेट है, इसमें जो ग्रीन है वो इंडिकेट करता है कि द वैल्यूज हायर, रेड इंडिकेट करता है वैल्यूज लोअर, एंड देन येलो इंडिकेट्स द वैल्यू नियर टू द रेंज दैट वी हैव गिवन. हमने 90 दिया था तो 90 वाला है. और एक ये है अलग अलग फॉर्मेट्स, राइट. ये कलर डॉट्स हैं. so likewise fine, so you just apply that setting that you want to apply. Okay,
So that's all from this thing. Then next is all about your freeze and unfreeze option. Now in this hide, unhide, freeze, unfreeze rows and columns. Hide and unhide is just to see in some cases if I want a certain column or certain row I want to hide. I don't want to delete them. I just want to hide them. हाइड में क्या होता है कि वो दिखती नहीं है बट वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं दो कॉलम्स के बीच में तो नज़र नहीं आती बस right? So we can hide and unhide with the help of these options, and for that we have to go to the format option in the cells groups and home tab, and then they'll find this hide and unhide option. Or the easiest and the best way is right click on the cell that you want to hide. उस सेल एड्रेस सेल के हेडर पे आपको राइट क्लिक करना है और हाइड अनहाइड का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट? या फिर होम टैब में सेल्स ग्रुप में आपको अनहाइड, ये देखो ये सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट है, इसमें अनहाइड और हाइड दोनों ऑप्शंस हैं। और हाइड करने से पहले आपको वो रो सेलेक्ट करनी होगी जिसको आपको हाइड करना है, उस रो पे सेलेक्ट करना है, फिर आपकी वो रो हाइड हो जाएगी, ठीक है? और अनहाइड करने के टाइम पे भी वही करना है, ठीक है? फ्रीज पेन्स में क्या होता है कि लाइक आई से टोल्ड यू कि ये जैसे ये स्टॉक आइटम है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ, अब ये पेज मान लो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम, सो क्या होता है कि ये आपका टेक्स्ट ऊपर चला जाता है, आपको ये हेडिंग्स नहीं दिखते टॉप वाले। इफ़ यू वांट टू फ्रीज दिस, कि जो टॉप रो है मैं उसको फ्रीज कर दूं, तो उसके लिए फ्रीज पेन ऑप्शन है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, यू सेलेक्ट दिस, तो इवन इफ़ यू स्क्रॉल डाउन आपकी फर्स्ट रो वहीं की वहीं रहेगी, आपको बाकी की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या हेडिंग्स थे, ठीक है? ऐसे ही यू कैन freeze first column if you want to freeze this first column, that can also be done. और तीसरा ऑप्शन है फ्रीज पेन का। फ्रीज पेन क्या करता है, जिस सेल पे आपने सेलेक्ट करा है उसे ऊपर वाले सारी रोज और उससे लेफ्ट वाले सारे कॉलम्स को वो फ्रीज कर देता है, ठीक है? आई विल जस्ट शो यू दैट। okay, first of all, hide and unhide. Now if I want to hide this row, go to होम टैब, सेल्स ग्रुप, फॉर्मेट, यहाँ पे हाइड है, हाइड रो पे क्लिक कर दो। सॉरी, रो से तो उसने सारी रोज कर दी क्योंकि मैंने सारी रो सेलेक्ट कर रखी हैं। हाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये कॉलम हाइड हो गया। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट इज हिडन? यू कैन सी दिस जी एच इज नॉट शोन, आई इज देयर, ठीक है? और ये लाइन थोड़ी डार्क हो जाती है, फाइन। अनहाइड करना है तो वहीं पे जाओ वापस और अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर दो। सेलेक्ट अनहाइड कॉलम, ठीक है? सिलेक्शन जरूर करना, अदरवाइज वो शो नहीं, इट इज डिफिकल्ट फॉर सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई कि किसको अनहाइड करना है। सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? सिमिलरली इफ यू वांट टू हाइड सर्टेन रोज, to select the rows, go to format, hide rows, those rows will be hidden। hidden होने से यहाँ पे 3 के बाद 6 आ रहा है, तो 4 5 हाइड हो गई। दोनों को सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट एंड देन अनहाइड रोज। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा तरीका, सेकेंड वे इज सिंपलर। एच को हाइड करना है, एच पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करो, हाइड हो जाएगा। फिर से दोनों सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, अनहाइड, अनहाइड हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही
select the rows, right click on the row headers, hide, वो रो हाइड हो जाएंगी, सेलेक्ट, राइट क्लिक, अनहाइड, अनहाइड हो जाएंगी। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, आई एम हाइडिंग दिस। अनहाइड करने का एक और तरीका, जी और आई के बीच में जब आप लाइन पे आओगे, यू विल फाइंड द कर्सर चेंजेस इनटू डबल लाइन एरो। इसको डबल क्लिक करो, अपने आप जो हाइड वाली लाइन है, रो है, वो कॉलम है, ऑटोमेटिकली वो विजिबल अनहाइड हो जाएगा। राइट, डबल क्लिक हेयर, बट यू हैव टू कम टू द सेंटर। इन दोनों रो कॉलम नेम हेडर्स के बीच में आना है, और जैसे ही आपका कर्सर डबल लाइंस में चेंज होगा, डबल क्लिक कर दो। ठीक है, तो आपका हाइड किया हुआ कॉलम दोबारा दिखेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, रोज में भी। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये 3 रोज को हाइड कर देता हूँ। अनहाइड करने के लिए आई कम हेयर, ये डबल लाइन एरो आ गया, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, फाइन, सो रोज विल बी विजिबल नाउ। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रीज पेन, जैसे मैं बात कर रहा था कि हम एक और शीट ले लेते हैं। यहाँ पे let's say there's a column serial number and we have long list of numbers, right? Similarly we have names also, other things also, lot of things are there। let's say मान लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हमें अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, मैं लास्ट पे जाऊं, चलो ये तो एक ही कॉलम है, मान लो यहाँ पे नेम भी है, क्लास भी है, और भी डिटेल्स हैं, right? So what happen is now that it will be difficult for me to identify कि कौन से कॉलम में हूँ भाई। मैं अभी लास्ट में हूँ, या मान लो लास्ट वाले सेल पे हूँ, राइट? आई एम एट 199 सीरियल नंबर, राइट? सो आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि इस कॉलम का हेडिंग क्या था ऊपर टॉप पे। मुझे बार बार ऊपर जाके देखना पड़ेगा, अच्छा ये दिस इज क्लास, राइट? So it is difficult for me to identify. So what we can do is we can hide, freeze this top column, right? उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में, व्यू टैब में ये फ्रीज बटन है, फ्रीज पेज बटन है। फ्रीज पेज में एक ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। व्हेन यू क्लिक दिस, तो आपको यहाँ पे एक डार्कर लाइन दिखेगी। इससे क्या होगा कि जब आप स्क्रॉल करोगे तो पहली रो जो है वो आपकी फिक्स वहीं पे फ्रीज होगी, वो आपकी हाइड नहीं होगी जब आप स्क्रॉल करते हो। तो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि ये फर्स्ट रो में नॉर्मली हम हेडिंग्स वगैरह फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है फ्रीजिंग करने का। ठीक है, अनफ्रीज करना है तो यहीं पे जाइए और अनफ्रीज पेन्स ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दो, अनफ्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मान लो हमें कॉलम नंबर 1 को फ्रीज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, जब मैं एरो की से इधर जाऊंगा तो वो इधर फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाना, दिखेगा नहीं, राइट? So I want to freeze this, so select again, go to freeze, freeze first column. Now you see that darker line, this indicates now the first column has been freezed, right? So it's quite a helpful tool when we are dealing with a table having larger values, right? तो अनफ्रीज करने के लिए यहाँ पे अनफ्रीज पे क्लिक करो। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है दैट इज फॉर freezing some particular cell, like if I want to freeze from here। ठीक है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ से फ्रीज करना चाहता हूँ, मेरे पास ये भी ऊपर भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम नहीं चाहिए, मुझे फ्रीजिंग करनी है ये क्लास के बाद यहाँ से, राइट? सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सेल फर्स्ट, गो टू फ्रीज, गो टू द फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पेन। ये सेल भी आपको पिक्चर में दिखेगा। तो इससे इससे ऊपर वाला भी फ्रीज हो जाएगा, इससे लेफ्ट साइड वाला भी फ्रीज हो जाएगा, दोनों तरफ। नाउ यू मूव ऑन विद द माउस और कीबोर्ड, यू विल फाइंड first 4 columns are also freezed and first 2 rows are also freezed,
तो ये एक बहुत हैंडी ऑप्शन है जब आप बड़े टेबल में काम कर रहे हो, ठीक है। हेडिंग्स वगैरह को फ्रीज करने में, एंट्रीज करने में काफ़ी हेल्प होता है, राइट। वी टीचर्स आर यूजिंग दिस वेरी हैंडीली, बिकॉज हमें इजीली आइडेंटिफाई करना, जैसे आप लोग रिजल्ट रिकॉर्ड्स हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ से। फाइन। So that's all about freezing and unfreeze option. Then next we have page breaks. पेज ब्रेक्स का एडवांटेज क्या है? uh, let me come to the point. I'll just give you definition today because I think the lecture is about to end in shortly. Okay, page breaks, as I told you in the beginning also, that if I want to I want that I'm want to print a certain thing, print one page, but मुझे फर्स्ट 5-6 रोज तक का डेटा चाहिए, उसके बाद वाला नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बाद वाला अगले पेज पे चला जाए। So that we can do with this page break option, right? सो पेज ब्रेक का उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। वर्ड में भी हमने किया था, इफ़ यू वांट टू ऐड अप अ सेट पेज ब्रेक समवेयर, सो we can put that break in the page, and then whatever comes after that will go to the next page. Now by default it is automatically inserted in Excel based on the size of the paper and the margins and the scales that you set, and you can also apply from your site, ठीक है। चलो, I'll just end up here. We'll discuss about page breaks later on in the next meeting then we have, right? So just go through the things, and if you still need some help, if you want to clarify certain things, then you can come up back.